हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग सिस्मिक वेव्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इस पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल स्टडी किया। हम लोगों ने पी वेव के बारे में जाना, एस वेव के बारे में जाना और लास्ट एल वेव। इन तीनों वेव के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया विथ फिगर। ये देखिए, पी वेव्स जो एक स्प्रिंग की तरह ये एक्ट कर रहा है। देन एस वेव यानी सेकेंडरी वेव, ये एक सरपेंटाइन मूवमेंट शो कर रहा है। ये एल वेव, ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। और रिले वेव, देखिए साइड में भी कुछ लिखा है, देखिए ये बॉडी वेव। बॉडी वेव मीन्स पी और एस जो है पूरा का पूरा कह लीजिए कि जो सॉइल है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। जैसे ये आपको जो दिख रहा है, ये पूरा आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा जो आपको पैनल दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है आपका रॉक होगा। और वो रॉक कहीं से फॉल्ट हुआ और फॉल्ट होने के बाद जो भी एनर्जी एनर्जी था वो सब कुछ जो है सॉइल के साथ जो है मूव कर रही है। तो इस केस में देखिए पूरा का पूरा होल बॉडी जो है आपका मूव कर जाएगा। लेकिन और एल और आर के केस में, यानी एल वेव और आर वेव के केस में पूरा का पूरा होल कह लीजिए कि स्ट्रेटम या पूरा का पूरा स्ट्रेटा नहीं मूव करता है सॉइल का। इसमें कुछ पार्ट जैसे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लीजिए ये आर वेव है, तो आर वेव का ये बॉटम का पोर्शन जो है ये आपका स्टैटिक रहेगा, ये कहीं नहीं मूव कर रहेगा। बस इतना पार्ट जो है, यही इतना पार्ट जो है आपका डायनामिक कंडीशन में रहेगा। ओके, तो इन चीज़ों को एक बार हम वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं। There are three basic types of elastic waves which cause earthquake waves. Two of those three develop in bodies of rock. The faster wave is called the primary or P wave. It moves in the same way as a sound wave, so that as it spreads out, it pushes and pulls the rock. The slower of the two waves is called the secondary or S wave. When an S wave forms, it shears the rock sideways at right angles to the direction it is traveling in. In most earthquakes, P waves are felt first. The effect of P waves is bumping and rattling of windows. The effect of S waves is an up and down and side to side motion, which shakes the ground surface vertically and horizontally. This is the wave motion that damages structures of buildings, causing them to collapse. The third type of an elastic wave is called surface wave and can be split into two types. The first type is called a love wave. It moves the ground from side to side in a horizontal motion. This motion particularly damages the foundations of buildings. The second type is called a Rayleigh wave. Rayleigh waves move vertically and horizontally in a vertical plane, which moves in the direction the waves are traveling in. Scientists have developed a theory which states that earthquakes are caused by plate tectonics. It also says that Earth's outer shell is split into about 10 larger and 20 smaller plates. These plates move apart, collide, and slide past one another. These movements are caused by earthquake waves. An example of an earthquake caused by plate tectonics is the Peruvian earthquake in 2007. Peru lies on the boundary of two plates, the Nazca Plate and the South American Plate. The South American Plate moves 60 millimeters per year towards the Pacific Ocean and over the Nazca Plate. The tension is sometimes released through earthquakes. Earthquakes can be detrimental. In fact, in most cases they are. In Peru, there were over 2,000 casualties. Scientists have no way of foreseeing earthquakes, as it is not very easy. However, there are three simple steps to follow if you are in a building during an earthquake. Drop, cover, and hold on. Just remember these steps and you'll have a better chance of being safe.
चलिए, आई होप आप जो है सिस्मिक वेव्स के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक होता क्या है एक्चुअली में? अगर इन सिंपल वे में बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो कह लीजिए कि इट इज ए इंस्ट्रूमेंटल रेटिंग ऑफ द अर्थक्वेक, मीन्स इट्स मेजर द साइज एंड एनर्जी, या फिर कह लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे किस साइज का जो है आपका एनर्जी रिलीज हुआ, किस स्ट्रेंथ की कितनी पावर थी उसकी, ये आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। फिर भी इसके स्टेटमेंट को पढ़िए। इट इज द टर्म expressing the rating of an earthquake on the basis of amplitude of seismic waves recorded as seismographs. The logarithm scale is used because earthquake vary in size over a wide range. देखिए, मैग्नीट्यूड को हम लॉगरिथमिक वे में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, लॉगरिथम लेने का ये कारण होता है कि अगर कोई पॉइंट आपको माना यहाँ पे मिल रहा है, अर्थक्वेक का ही पॉइंट यहाँ पे मिला, अब यही मान लीजिए कोई लोकेशन 1 है और इसका पॉइंट मान लीजिए लोकेशन 2, जो लोकेशन नंबर 2 है ये मान लीजिए आपका 200 किलोमीटर दूर है। लोकेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हमको कहीं डिस्टिंक्टली नहीं मिल रहा है, माने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पर, मतलब हमको कोई पॉइंट नजदीक में नहीं मिल रहा है, बहुत ही दूरी पे, बहुत ही लॉन्ग स्पेस जो है हमको ट्रेवल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसलिए इन सभी को एक ग्राफिकल फॉर्म में या फिर इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये। नेक्स्ट, इन एक्चुअल पार्टिकल ए सर्टेन अर्थक्वेक record is selected as standard and assign a magnitude value a0। ध्यान से इस टर्म को पढ़िए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ए सर्टेन अर्थक्वेक रिकॉर्ड इज सेलेक्टेड। कोई एक रिकॉर्ड होगा जिसको स्टैंडर्ड कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि आप यहाँ a0 पे आप पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ a0 उसी स्टैंडर्ड वैल्यू के आप यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट, the magnitude of an observed earthquake, कैपिटल M से इसको डिनोट कर रहे हैं, is then expressed as a ratio of the standard shock। तो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है लॉगरिथम कैपिटल A माइनस लॉगरिथम A0। A0 के बारे में जान गए कि ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। A क्या है? देखिए, वेयर A कैपिटल A is the record trace of the amplitude of an observed earthquake, यानी जो रिसेंटली आपने अर्थक्वेक को ऑब्जर्व किया उसका ये डेटा है एट अ गिवन डिस्टेंस एज रिकॉर्डेड ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड A0 इज द रिकॉर्ड ट्रेस ऑफ ए स्टैंडर्ड अर्थक्वेक। तो ये रहा आपका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आपको भी हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जो है कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। इंटेंसिटी, तो अगर इन जनरल इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी क्या है? तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इट इज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स विच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ, कह लीजिए डिग्री ऑफ ग्राउंड शेकिंग, कितने अमाउंट में जो है आपका ग्राउंड वाइब्रेट कर रहा है या शेक कर रहा है, और उससे होने वाले कितने इंपैक्ट हैं, यानी ह्यूमन लाइफ को एंड दी प्रॉपर्टीज, नेचुरल प्रॉपर्टीज या फिर कह लीजिए कि आपका मैन मेड प्रॉपर्टीज, जो भी है उस पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, ये हम इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। इट इज द अनदर टर्म एक्सप्रेसिंग रेटिंग ऑफ एन अर्थक्वेक थ्रू broadly in a qualitative manner
on the basis of its effect on living and non-living things of the region visited by it. The effects are generally related to the degree of shocking experienced by these objects during an earthquake. इस रेटिंग के ही हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी के अर्थक्वेक पे हमको कितना जो है लॉस होगा। यानी कह लीजिए कि आपका जो अर्थक्वेक का वेव है वो आपका मेजर है, माइनर है, सीवियर है, क्या पॉइंट है, अभी इसके बारे में आगे आपको टेबल के थ्रू हम दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके लिए है कि किन कंट्रीज में जैसे कई प्रकार की कंट्रीज हैं तो उसमें कौन कौन से इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या स्केल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए चाइना, तो चाइना में ल्यूडो स्केल यूज करते हैं। यूरोप में यूरोपियन मैक्रोसिस्मिक स्केल यूज करते हैं। हांगकांग में मॉडिफाइड मर्कली स्केल एमएम। देखिए मोस्ट ऑफ दी बुक में आप देखेंगे कि मॉडिफाइड मर्कली स्केल के बारे में डिस्कशन बहुत ज्यादा मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अभी देखिए इंडिया में भी, देखिए इंडिया में क्या यूज कर रहे हैं। इंडिया में मेडवेदेव स्पॉनहर कार्निक स्केल यानी एमएसके 64 एमएसके 64 मेडवेदेव स्पॉनहर कार्निक स्केल, इसके बारे में मोस्ट ऑफ द बुक अगर देखेंगे तो कोई डिस्कशन दिया नहीं है। मोस्ट ऑफ द बुक में आपको मॉडिफाइड मर्कली स्केल के बारे में देगा, लेकिन इंडिया में जो इंटेंसिटी मेजर करने का स्केल है वो है एमएसके 64। एमएसके 64 देखिए ये तीन साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे पड़ा है, मेडवेदेव, स्पॉनहर, कार्निक। ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस स्केल को 1964 में इसको कह दीजिए कि इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको कहते हैं एमएसके 64। इजराइल में भी एमएसके 64 यूज किया जाता है, जापान में जेएमएस सिस्मिक इंटेंसिटी स्केल, कजाकिस्तान में भी आपका एमएसके 64, फिलीपींस में फिवोल्क्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल दैट इज PEIS, रसिया में भी आपका एमएसके 64 है, ताइवान का अलग स्केल है, देखिए सेंट्रल वेदर ब्यूरो सिस्मिक इंटेंसिटी स्केल, यूनाइटेड स्टेट का आपका मॉडिफाइड मर्करी स्केल। तो हर एक कंट्री का लगभग अपना अपना जो है मॉडिफाइड कह लीजिए कि या फिर कह लीजिए इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए स्केल है। मोस्ट ऑफ द कंट्री आपका एमएसके 64 यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, राइट साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वन इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या होगा, डिजाइन ऑफ शॉक इंस्ट्रूमेंटल, इफेक्ट क्या होगा, डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट ओनली, ये आपको फील ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि वन इंटेंसिटी का अर्थक्वेक, इवन वन और दो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है आप डेली फील करते हैं। कैसे फील करते हैं, सुपरफिशियल मूवमेंट के बारे में बात हुआ था। इसमें क्या होता है कि आप हाईवे पे खड़े हैं और ओवरलोडेड कोई ट्रक या इम्पटी ट्रक ही अगर मूव करता है तो कुछ आप देखते होंगे अगर साइड में है, हाईवे के साइड में, तो आपको वाइब्रेशन फील होता होगा। या फिर आपका घर जो है रोड पे है और कोई भी ओवरलोडेड अगर व्हीकल जा रहा है, ट्रक पास कर रहा है, तो आपका जो हाउस है वो भी हल्का फुल्का वाइब्रेट करने लगता है। तो मात्र वही है, वन और टू इंटेंसिटी का वही अर्थक्वेक है जिससे कुछ होता नहीं है। मामूली आपका ग्राउंड शेक करेगा, वाइब्रेट करेगा, आपको फील होगा, लेकिन उससे कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फीबल, फेल्ट बाय ऑब्जर्वर एंड बाय ए फ्यू पीपल एट रेस्ट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। इंटेंसिटी थर्ड के बारे में देखिए, ये होता है स्लाइट, जनरली फेल्ट बाय मिनी, इसका कोई भी मैग्नीट्यूड डिसाइडेड नहीं है, वो लगभग 2.5 और 2 के रेंज में ही ये भी काउंट होते हैं। तो थर्ड इंटेंसिटी के अर्थक्वेक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
फोर्थ वाले पे आते हैं, इंटेंसिटी 4, जो कि मॉडरेट है। फेल्ट बाय ऑल यूटेंसिल्स, ग्लासवेयर, क्लिंक एंड क्लेस विंडोज शटर रैटल्स। मैग्नीट्यूड 3.5। वाइब्रेट करेगा, आपके यूटेंसिल्स वाइब्रेट कर जाएंगे, ग्लासवेयर आपके जो है कह लीजिए कि वाइब्रेट करेंगे, आपको सुनाई देगा अच्छे से। लेकिन 4 वाले इंटेंसिटी पे भी कुछ खासा नुकसान आपको नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ इंटेंसिटी देखिए, फेयरली स्ट्रांग। इफेक्ट क्या होगा? बिल्डिंग जो है ट्रेम्बल हो जाएगा, पार्क्ड व्हीकल रॉक्स, वॉल क्लॉक स्टॉप। इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? 3.5 टू 4.3। इंटेंसिटी 6 पे देखिए, ये स्ट्रांग होता है। स्लीपिंग पीपुल अवेकन, वो जग जाते हैं, अगर कोई सोया हुआ है वो जग जाएगा, इतना मूवमेंट होगा। डिस्टर्बेंस ऑफ फर्नीचर, मैग्नीट्यूड 4.3 टू 4.9। सेवेंथ देखिए, इट्स वेरी स्ट्रांग। वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ फर्नीचर, वॉल क्रैक, हैंगिंग ऑब्जेक्ट, स्विंग, चर्चेस बेल रिंग। मैग्नीट्यूड 4.9 टू 5.5। अब देखिए, आपका इंटेंसिटी 5 से जो है आपका प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद आगे जहां तक बढ़ेंगे, समझ लीजिए डिस्ट्रक्शन ही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। 8 देखिए, डिस्ट्रक्टिव। नाम से देखिए 8 पे, तो अगर 8 इंटेंसिटी का कोई अर्थक्वेक आता है तो डिस्ट्रक्शन होना तय है। मूविंग ऑब्जेक्ट इफेक्ट क्या होगा देखिए, व्हीकल्स, ट्रेन ओवरथ्रोन, रेल्स ट्विस्टेड, मॉन्यूमेंट्स, चिमनी, टावर स्वे, क्रैक एंड फॉल डाउन। यानी यहाँ पे देखिए, ये पूरा इफेक्ट देखिए कहीं ना कहीं जो है आपका स्ट्रक्चरल कोलैप्स के बारे में ये डिस्कस कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? 5.5 टू 6.5। 9 देखिए, रूनस, हैवी डैमेज टू बिल्डिंग, बिगिन टू कोलैप्स, रिजर्वायर स्वे। मतलब मैसिव स्ट्रक्चर भी अगर आप, अभी देखिए 8 वाले में मैसिव स्ट्रक्चर के बारे में उतना डिस्कशन नहीं है, माने डैम वगैरह या रिजर्वायर वगैरह जो है आपका वो कोलैप्स नहीं कर रहा है। लेकिन 9 वाले इंटेंसिटी में आ रहे हैं तो जो मैसिव स्ट्रक्चर है, मैसिव स्ट्रक्चर भी क्या है, डैमेज हो रहे हैं। जब मैसिव स्ट्रक्चर डैमेज हो रहे हैं तो जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं उनके तो पूछना ही नहीं, उनके बारे में डिस्कस ही नहीं करना, वो ऑटोमेटिक जो है कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 6.2 टू 7। 10 देखिए, डिजास्टरस, बिल्डिंग रेस्ट टू ग्राउंड, लाइफ लाइन डिस्ट्रॉय। 7 टू 7.3। 11 देखिए, वेरी डिजास्टरस, ओनली अ फ्यू स्ट्रक्चर लेफ्ट, डैम अफेक्टेड, ब्रिचेस और ओवरथ्रोन, ग्राउंड क्रैक्ड। मैग्नीट्यूड 7.4 टू 8.1। लास्ट पॉइंट देखिए, कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ग्राउंड बैडली ट्विस्टेड। मतलब कह लीजिए कि आपका यहां से 9 टू 12, यहां पे आपका मोस्टली आपका एस वेब है। एस वेब इन इंटेंसिटी के पॉइंट में जो है प्रीडोमिनेंट है, और 12 वाले सेक्शन में तो एस हाईली प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि कह रहा है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन सिर्फ इस प्रकार के मूवमेंट से ही संभव होता है। अगर ग्राउंड इस प्रकार का मूवमेंट कर गया तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तय है। ओके, तो आप इस टेबल को मेमोराइज करिएगा, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, कोशिश करिए मेमोराइज करने के लिए इसको।
ये देखिए आपका सिस्मोग्राफ है। किस प्रकार का सिस्मोग्राफ होता है आप इसको देख सकते हैं। देखिए सिस्मोग्राफ इस प्रकार का कुछ ड्रा होता है। ये देखिए आपका बैकग्राउंड नॉइज, मतलब अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है या कुछ भी मूव कर रहा है ग्राउंड पे, तो बहुत ही माइन्यूट आपका जो है आपका इसमें डिस्टरबेंस शो कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे देखिए। सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पहले बैकग्राउंड नॉइज है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ से इसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट, द अर्थक्वेक हैपेंस एट टाइम 0। सेकंड पॉइंट, पी वेव्स अराइव फर्स्ट। यहां से देखिए पी वेव अराइव यानी प्राइमरी वेव जो है अराइव कर गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट पी वेव अराइव ए लिटिल ओवर 2 मिनट लेटर। देन थर्ड देखिए, देन एस वेव अराइव। यहां से देखिए एस पी टाइम इंटरवल है, बीच में गैप है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट एस वेव अराइव 4 मिनट लेटर। फोर्थ पॉइंट देखिए, सरफेस वेव्स अराइव लास्ट। अच्छा, अब सरफेस वेव के बारे में क्या आप पढ़े हैं। सरफेस वेव में आपका क्या होता है भाई, आपका एल वेव था और रेले वेव था। आप थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करिए। बाकी ये सब किस में आते थे आपके, बॉडी वेव्स में, पी और एस। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द सरफेस वेव विच ट्रेवल द लॉन्ग वे अराउंड अर्थ सरफेस अराइव लास्ट। फिफ्थ पॉइंट को देखिए, एसपी टाइम इंटरवल क्या कह रहा है, द एसपी इंटरवल हियर slightly less than 2 minutes tells the seismologist how far away the earthquake was। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिस्मोग्राफ कैसे प्लॉट होता है। ठीक है, ये आपका टाइम है, स्केल को देखिए, ये आपका टाइम का स्केल है, और ये आपके जो है इस पे आपका इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड। तो सिस्मोग्राफ कुछ इस प्रकार का आपका दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। बेसिकली इसको 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन क्या है आपका, बेस्ड ऑन लोकेशन। सेकंड, बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन द कॉज। एंड लास्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन। बेस्ड ऑन लोकेशन में पहला पॉइंट जो है गिवन है, इंटरप्लेट देन इंट्राप्लेट। तो इंटरप्लेट में क्या होता है, ये जो है अर्थक्वेक ऑकर होगा एट दी प्लेट बाउंड्री। ये ऑकर होगा बाउंड्री यानी जो प्लेट है, प्लेट की बाउंड्री यानी उसके अपर सरफेस पे। इंट्राप्लेट में क्या है, इंट्राप्लेट में जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट यानी अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक ओरिजिनली ओरिजिनेट होता है, यानी कोई टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट आपस में स्लिप कर किए, तो स्लिप करने पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि इंट्राप्लेट, वहां से रिलीज हो रहा है। जैसे आपका ये टेक्टोनिक प्लेट्स था, तो यहाँ पे जो आपका स्टार्ट हुआ स्लिपिंग, स्लिप हुआ तो आपके एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये प्लेट कहाँ पे थे, अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा नीचे, तो उसको हम कह रहे हैं इंट्राप्लेट। और कुछ आपके अर्थक्वेक जो है यहीं अर्थ सरफेस के आसपास पे ही जो है आपका, यानी बाउंड्री सरफेस या फिर कह लीजिए कि इस सरफेस के आसपास में जो है अर्थक्वेक जनरेट या एनर्जी जनरेट होते हैं। ठीक है, अ, इनका रिपीट टाइम अगर हम बात करें तो बहुत कम होता है। इंटरप्लेट का रिपीट टाइम बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, बार बार ये नहीं होता है। ठीक है, इंटरप्लेट का रिकरेंस टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत ही लॉन्गर पीरियड होता है, कई बार ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
वहीं एनर्जी की अगर हम बात करें इंटरप्लेट में, तो इसको स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसीडर करें कि मान लीजिए ये तो अगर बाउंड्री पे हो रहा है, तो बाउंड्री पे जो है उतना जो है इस पे स्लिपिंग या फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसमें बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, लेस स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा इंटरप्लेट में। और इंट्राप्लेट में चूंकि जो है आपका मैक्सिमम एरिया जो है कवर है दोनों प्लेट से, हल्का सा स्लिप अगर होगा तो बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, यानी सीयर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होगा इंट्राप्लेट में। देन नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ। तो बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ में जो है आपका दो पॉइंट है, सैलो अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। तो इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन ये होता कि सैलो अर्थक्वेक जो है आपका 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर के आसपास में होता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें डीप अर्थक्वेक में, तो डीप अर्थक्वेक आपका 70 टू 300 किलोमीटर के रेंज में पाए जाते हैं। चलिए, तो सैलो और डीप अर्थक्वेक को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सैलो की बात करें तो ठीक है, वो 70 किलोमीटर के रेंज में जो है इसका जो है ऑकरेंस होता है। डीप का 70 टू 300 किलोमीटर के रेंज में इसका जो है ऑकरेंस होता है। वहीं एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सैलो अर्थक्वेक की जो एनर्जी होगी वो बहुत ही मिनिमम होगी एज कम्पेयर टू डीप वाले से। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटेंसिटी, क्योंकि पूरा हम अर्थक्वेक को टर्म से रिलेट कर रहे हैं यानी इंटेंसिटी से। अब इंटेंसिटी की बात करें तो सैलो अर्थक्वेक में 1 से 5 इंटेंसिटी तक का अर्थक्वेक जो है आपको फील होगा। और वहीं अगर हम बात करें डीप अर्थक्वेक में तो वो 6 टू 8 इंटेंसिटी का आपको जो है अर्थक्वेक फील होगा। वहीं अगर सैलो में बात करें तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी, और डीप में जो है आपका बहुत ही ट्रिमेंडस या फिर बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में आपका एनर्जी रिलीज होगा, जो पहले तो एस वेब में जो है मूव करेगा, देन सॉरी पहले पी वेब में वो मूव करेगा, देन एस वेब में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले बॉडी वेव ट्रेवल करेगा, देन सरफेस वेब में वो कन्वर्ट होगा, यानी एल और रेले यानी लॉन्ग वेव और रेलो वेब में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, शैलो अर्थक्वेक की बात करें तो ये हाईली डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, क्योंकि आप इंटेंसिटी देखिए 1 to 5, अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो कुछ खासा आपको डिस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा। अगर आप पिछले चार्ट में अगर जाएंगे यहाँ पे तो आपको कुछ खासा डिस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा। 1 से 5 के बीच में जो है कोई जान माल का उतना नुकसान के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। ओनली आपका जो है कह लीजिए कि बिल्डिंग वाइब्रेट कर जाएगा, ग्राउंड वाइब्रेट करेगा, जिससे जो यूटेंसिल वगैरह हैं या फिर कह लीजिए कि कोई अगर कोई सामान कह लीजिए कुछ भी अगर लटका हुआ है तो वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा। प्रॉब्लम तो आपका जो है 6, 7, 8 में है। ठीक है, 6 के बाद से पूरा का पूरा जो है आपका कह लीजिए कि डिस्ट्रक्शन वाला केस है। ठीक है, तो डीप अर्थक्वेक जो है ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है। थर्ड आपका बेस्ड ऑन कॉज। तो बेस्ड ऑन कॉज में फर्स्ट पॉइंट है, देखिए नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक। नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक यानी ऐसा अर्थक्वेक जो टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू ना आए। तो ऐसा कौन सा है भाई? ऐसा मेजरली तब होता है जब कोई कंट्री, मान लीजिए कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है या हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर रहा है, या फिर आप कोई हैवी इक्विपमेंट आप जो है रन कर रहे हैं, कोई हैवी मशीनरी आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर कोई आप प्लांट रन कर रहे हैं। उस कंडीशन में उस लोकल एरिया में अगर आप कह लीजिए कि अगर कोई कंट्री अगर बॉम्ब वगैरह वो अगर टेस्ट कर रहा है यानी यूरेनियम टेस्टिंग कर रहा है, तो वो तो खैर मान लीजिए कि मेजर जो है आपका केस है और बहुत ज़्यादा एरिया जो है कह लीजिए कि वाइब्रेट करता है। और वहीं अगर हम हैवी मशीनरी की बात करें तो वो कुछ मैक्रो स्केल पे मतलब कह लीजिए कि 100 मीटर या 200 मीटर के रेंज में जो है पूरा का जो है वो रीजन वाइब्रेट करेगा, बट उससे कोई मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चरल कोलैप्स होने के चांस नहीं है। हाँ, अब चूंकि अगर आप उस लोकेलिटी में हैं, उस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, तो आपको इरिटेशन फील होगा,
ऑलवेज आपका इरिटेशन जो है, इरिटेशन फील होगा, माइंड आपका अपसेट रहेगा, आप परेशान रहेंगे, चक्कर या फिर कह लीजिए कि आपको वोमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है इस केस में। तो नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक यानी कह लीजिए सुपरफिशियल मूवमेंट ही है ये, ठीक है, एक तौर पे। सेकंड आपको पता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, अगर टेक्टोनिक अर्थक्वेक आया तो मेजर यानी डीप अर्थक्वेक होने के चांस होते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक में, ठीक है। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक में वही आपका कह लीजिए 6 to 7 या 6 to 8 इंटेंसिटी के जो है आपके अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, ठीक। वही अगर हम बात करें बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में आप देखिए, मैग्नीट्यूड को जानने के लिए आप सीधे यहाँ पे आइए इस सेक्शन को देखिए और मैग्नीट्यूड से आप फाइंड आउट करिए। आपका इंटेंसिटी 5 से लेके, यानी आप अगर हम बात करें 4.3 से लेके 8.1 तक के मैग्नीट्यूड के जो भी आपके पास वैल्यू हैं वो सभी डिस्ट्रक्शन के हैं सारे जो है। अगर 4.3 के एबव कोई भी अर्थक्वेक, 4.3 मैग्नीट्यूड के एबव कोई भी अर्थक्वेक अगर अकर हो रहा है या हैपन हो रहा है तो जो है डिस्ट्रक्शन के कारण हो बन सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट आपको नोट्स में जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टेटमेंट को यहाँ पीपीटी में पुट करके उसको रीड करना वो ठीक नहीं है, आप पहले समझिए बातों को। इंटरप्लेट क्या है, इंट्राप्लेट क्या है, सैलो अर्थक्वेक, डीप अर्थक्वेक, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, आप इन सब चीज़ों को पहले समझ लीजिए। बात, पहले बात को समझिए, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, समझिए, दिमाग में एक इमेज बनाइए। इमेज बन गया, इट्स गुड। नहीं बन रहा है तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।